Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। मुर्शिदाबाद में बेघर हुए हिंदू भाजपा नेता प्रतिपक्ष सुकांत मजुमदार ने शरणार्थियों से की मुलाकात। सिलीगुड़ी और फुलबाड़ी में होगा वक्फ बिल विरोध मार्च। तनाव से बचने के लिए बंगे हिंदू महामंच ने किया पुलिस से संपर्क। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 4 में चरक पूजा के दौरान 2 दिनों से लगातार हिंसा, भारी पुलिस बल तैनात। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुर्शिदाबाद में बेघर हुए हिंदू। मुर्शिदाबाद में जिहादी ताकतों के अमानवीय हमले के कारण मुर्शिदाबाद के हिंदू अब बेघर हो गए हैं। वे अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं। वे सभी फिलहाल मालदा के पारालाल हाई स्कूल परिसर में शरण लिए हुए हैं। आज भाजपा नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुकांत मजुमदार ने इन शरणार्थियों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। বাংলাদেশের বিভিন্ন জমি আমরা জেলায় জেলায় এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামবো, জেলায় জেলায় রাস্তায় নামবো, আমরা কোর্টে যাব। মানে একদিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লড়বো, আর একদিকে আমরা কোর্টে গিয়ে আইনি পথে লড়বো। আমি আজকেই রাত্রিবেলা এখান থেকে ফিরে গিয়ে সন্ধ্যেবেলা আমি মোথাবাড়ি থেকে ফিরে আসার পর মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজিকে পুরো আমি যা দেখলাম পুরো বিষয়টা বলবো এবং আমি বিরোধী দলনেতার সাথে আজকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। কোর্টে গিয়ে আগামী দিনে যেন আরও বেশ কিছুদিন কেন্দ্রীয় বাহিনী এখানে রাখা যায় মুর্শিদাবাদে উপদ্রুত অঞ্চলে, তার জন্য আমরা কোর্টের কাছে আপিল জানাবো। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কি এখন সঠিকভাবে ইউজ করা হচ্ছে? কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঠিকভাবে ইউজ করা হচ্ছে না, সেই জন্য আমি এরপরে কোর্টের কাছে আমরা বিজেপির তরফ থেকে আমরা আবেদন জানাবো কোর্টকে যে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে এসপির আওতার বাইরে অর্থাৎ রাজ্য প্রশাসনের বাইরে নিয়ে এসে যেন কাজ করতে দেওয়া হয়। सिलीगुड़ी और फुलबाड़ी में वक्फ बिल विरोधी मार्च होगा। तनाव से पहले बंगे हिंदू महामंच ने पुलिस से किया संपर्क। वक्फ बिल को लेकर रद्द करने की मांग को लेकर आगामी 16 अप्रैल को फुलबाड़ी और 18 अप्रैल को सिलीगुड़ी में मार्च का आह्वान किया गया है। हालांकि इस मार्च को लेकर शहर में तनाव का डर व्याप्त हो रहा है। बंगे हिंदू महामंच के सदस्य कानून व्यवस्था बनाए रखने की मांग को लेकर सिलीगुड़ी थाना में ज्ञापन सौंपने पहुंचे। उनका कहना है कि मार्च के दौरान कोई भी अप्रिय घटना न हो और कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में न ले। শিলিগুড়িতেও নাকি একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তরফ থেকে একটি র্যালি হওয়ার কথা ছিল, যা পরবর্তীকালে নাকি পোস্টপন্ড হয়েছে শুনেছি। 18 তারিখে হওয়ার এরকম কথা আছে এবং 16 তারিখে ফুলবাড়িতে তারা এরকম একটা র্যালি করতে চলেছে। তো আমাদের বক্তব্য এটাই যে আমরা এই গত 2-3 দিন ধরে যে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর পাচ্ছি এবং দেখছি যে করুণ চিত্র, বাংলার মা বোনেদের কীভাবে নদী পার হয়ে 2-3 দিনের বাচ্চাগুলোকে কোলে নিয়ে স্কুলে এসে আশ্রয় নিতে হচ্ছে, নিজেদের ঘর বাড়ি সমস্ত কিছু ছেড়ে জীবিকা ছেড়ে দিয়ে আসতে হচ্ছে। সেই জন্য আমরা একটা পুলিশকে ডেপুটেশন দিলাম, দিয়ে বললাম যে আমরা যা দেখে নিয়েছি আর দেখতে পারছি না, দেখব না। আমরা যদি শিলিগুড়িতে এরকম কোনো ঘটনা ঘটে থাকে, একজনও সনাতনীর গায়ে যদি একটা আঁচল লাগে, তাদের যদি কোনো রকম 1 টাকারও ক্ষতি হয়, তাহলে তার ক্ষতি আমরা তার ক্ষতির বদলা সত্যিকারের এবার নিতে বাধ্য হব। সেটা চাই না যেন হোক, সেই জন্যই পুলিশকে বললাম পুলিশ যেন প্রোঅ্যাক্টিভভাবে তাদের এই উগ্রপন্থাকে দমন করে, সেই জন্যই আমাদের একটা আজকে सिलीगुड़ी में फिर हिंसा की चिंगारी, श्रद्धालुओं पर हमला, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 4 में चरक पूजा के दौरान 2 दिनों से लगातार हिंसा हो रही है। शनिवार और रविवार को रात को बदमाशों ने चरक भक्तों पर हमला किया, जिससे 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई। इस घटना के बाद भारी संख्या में इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिए गए। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने पहले ही इस मामले में पीड़ितों से मुलाकात कर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आज सिलीगुड़ी के पुलिस आयुक्त सी सुधाकर ने इलाके में पहुंचकर अफवाहों से बचने की अपील की। 2 ग्रुप के बीच में एक पत्थर चोरी हुआ और पुलिस तुरंत पहुंच गया, सिचुएशन कंट्रोल किया। बेसिकली रूमर हुआ, एक रूमर के
बारे में ऐसा हो गया। मैं आपका मध्य में मैं एकदम रिक्वेस्ट करा साफ कर रहा, रूमर एकदम आप लोग नहीं सुनेगा। पुलिस का काम कर रहा है, सिचुएशन एकदम पीसफुल, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। मालदा में भाजपा ने हिंसा पीड़ितों के लिए खोला कंट्रोल रूम, मंत्री सुकांत मजूमदार ने किया उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा ने मालदा जिला कार्यालय में कंट्रोल रूम खोला है। भाजपा के केंद्र प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इसका उद्घाटन किया। इस विधेयक के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और मुर्शिदाबाद में हुए हिंसक प्रदर्शन में कई लोग की जान गई है। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी बन गए हैं और भाजपा इस संकट के समय में उनकी मदद के लिए आगे है। আপনারা জানেন যে ধুলিয়ানে তার আগে মোথাবাড়িতে এবং আমি বলছি ভবিষ্যৎবাণী করছি এরপরে বাংলার বিভিন্ন জায়গায়, মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় আরও এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তার জন্য আমরা এই কন্ট্রোল রুম আগেই খুলেছিলাম, আজকে প্রথাগতভাবে বা অফিসিয়ালি যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি সেইভাবে এই কন্ট্রোল রুম নাম্বারগুলো আমরা শেয়ার করে দিচ্ছি। আমরা সেই এলাকার উপদ্রুত এলাকা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেদেরকে আমরা এই নাম্বারগুলো দিয়েছি এবং আগামী দিনেও দেব, যাতে করে কোথায় কি ঘটনা ঘটছে তারা এই কন্ট্রোল রুমে জানাতে পারে। এবং এরপর আমরা এখান থেকে রওনা হয়ে পাল্লালপুরে যাব। উদ্বাস্তু হয়ে যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌলতে যারা নিজেদের বাড়িঘর ছাড়া হয়েছেন, যারা যার জন্ম নেওয়া সন্তান, ভূমিষ্ঠ হওয়া সন্তানকে নিয়ে 4 দিনের সন্তানকে নিয়ে উদ্বাস্তু শিবিরে যারা থাকতে বাধ্য হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য, আজকে তাদের সাথে দেখা করে তাদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস, তাদের সাথে থাকার আশ্বাস। হিন্দুদের সাথে ভারতীয় জনতা পার্টি আছে, আক্রান্ত হিন্দুদের সাথে ভারতীয় জনতা পার্টি আছে। এবং আমার আগ্রহ থাকে शिक्षक भर्ती घोटाले और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भाजपा ने निकाला मार्च, मुख्यमंत्री का फूका पुतला। अलीपुरद्वार में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले को लेकर और राज्य में विभिन्न हिस्से में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भाजपा ने अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा में विरोध मार्च निकाला और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान फालाकाटा टाउन के भाजपा पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूका। विरोध जुलूस में फालाकाटा के विधायक दीपक बर्मन समेत पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मेरी याचिका में यह मांग है कि इस तरह के विस्फोटों और गोलीबारी की घटनाओं के बाद एनआईए को मुर्शिदाबाद में जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं। जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक है वे हिंदुओं को वोट नहीं देने देते हैं और इसीलिए लोकतंत्र की खातिर चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत होना चाहिए। मेरा पिटीशन में है, तो इतना एक्सप्लोजन हुआ है, फायरिंग हुआ है, तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, एनआईए होना चाहिए। तो आपको एनआईए के साथ और साथ में प्रेसिडेंट रूल ऐसा लगता है? प्रेसिडेंट रूल तो मैं ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन मांगा है, ये जनता का मांग है। जहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, ये लोग हिंदू लोग को वोट नहीं दे रहा है। इलेक्शन का दौरान ईसीआई को प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराना चाहिए यहाँ का डेमोक्रेसी के लिए, और एनआईए तुरंत होना चाहिए। मुर्शिदाबाद इशू में वहाँ एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटीज है। पहले एनआईए हुआ मोमिनपुर, इकबालपुर में, रिसड़ा में, डालखोला में, शिवपुर में, सब एक्सट्रीमिस्ट को अंदर किया एनआईए। यह अंसारुल बांग्ला पीएफआई सिमी का काम है, उसको पेट्रोनाइज कर रहा है यहाँ का सरकार वोट बैंक की लालच से। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव। SK लाइव न्यूज सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है। हमारा मिशन है हर युवा की प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। अब 10वीं और 12वीं के बाद डिप्लोमा कोर्स चुनना होगा आसान। सर्वश्रेष्ठ डिप्लोमा कोर्स में लें प्रवेश पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट,
इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी और भी बहुत कुछ। और आपको मिलेगा सिलीगुड़ी के टॉप इंस्टीट्यूट की फ्री विजिट और एक्सपर्ट से सीधी सलाह, करियर प्लानिंग में पूरा सहयोग। तो देर किस बात की, जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। जुड़े SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ। कॉल 8768384858। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन छ तेसरी नहीं SIP में ससानु रकम लगाउनु गर्दी गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई SIP में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर पहलो पुरस्कार 6 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 19 अप्रैल। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाट पंजाब सरकार डियर बैसाखी बम्पर 2024 लॉटरी में पहलो पुरस्कार विजेता चंद्रन कांता प्रधान के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना सर? सर कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. छोटा का है एक कोटी टाका छोटा का है एक कोटी मात्र 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न ए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल विरोधी आंदोलन से हिंसा, पुलिस सुरक्षा के बीच स्थिति अब काबू में। मुर्शिदाबाद में वक्फ विधेयक के विरोध में अराजकता के दृश्य सामने आए। विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा ने नक्सलबाड़ी थाने में ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि इस तरह की घटनाएं को रोका जा सके। तृतीय देश सरकार ने कहा कि वक्फ विधेयक के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हुई घटनाओं ने उन्हें स्तब्ध कर दिया है, जिसमें कई हिंदू मारे गए और विस्थापित हुए हैं। उन्होंने 16 अप्रैल को होने वाली विश्व हिंदू परिषद की सभा के दौरान अशांति के खतरे का भी हवाला दिया और पुलिस से सुरक्षा की मांग की। আমরা যে ওয়াকফ বিল পাস হয়েছে সংবিধানে, সেটার প্রতিবাদে চারিদিকে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সেই পরিস্থিতি যাতে না হয় আমরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আমরা এসেছি আজকে ডেপুটেশন দিতে, যাতে এইরকম অবস্থা আমাদের নকশালবাড়ি এবং খড়িবাড়ি বা আশেপাশে যে এলাকাগুলো রয়েছে তাতে এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, তারই জন্য আমরা এখানে সুনিশ্চিতকরণ করবার জন্য আমরা এখানে ডেপুটেশন দিতে এসেছি। बंगाल में भी याद किए गए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। पूरे देश के साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में भी संविधान प्रणेता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। राज्य विधानसभा में भी आज श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर माल्यार्पण कर उनकी प्रतिमा को प्रणाम किया गया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बाबा साहेब भीमराव को श्रद्धांजलि अर्पित की।
विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस थाने में ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि खोरीबारी में शांति सुनिश्चित की जाए। इस दिन विश्व हिंदू परिषद के सदस्य ने खोरीबारी पुलिस स्टेशन में एक ज्ञापन सौंपा। संगठन की सदस्य बबीता छेत्री ने कहा कि वक्फ विधेयक के विरोध में मुर्शिदाबाद में उग्र स्थिति पैदा हो गई है। आने वाले दिनों में खोरीबारी और सिलीगुड़ी में भी अराजकता फैल सकती है। यह ज्ञापन इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। यह ज्ञापन आज सभी पुलिस थानों में वितरित किया गया। शिक्षकों की नौकरियां, राज्य सरकार की नीतियां, भास्कर घोष का आरोप। धूपगुड़ी में उस्ती यूनाइटेड प्राइमरी टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में भास्कर घोष ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नौकरी गंवाने वाले शिक्षक अब आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर संस्थानगत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और प्रदर्शनकारियों को दिल्ली जाने के बजाय राज्य शिक्षा विभाग और स्कूल सेवा आयोग का घेराव करने की सलाह दी। ধূপগুড়িতে আসা আমাদের উস্তি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সাংগঠনিক কার্যকলাপের উদ্দেশ্যে অনেক বিষয় আছে যে বিষয়গুলোর আশু সমাধান হওয়া প্রয়োজন। সেখানে মানে প্রাথমিক শিক্ষা সহ বিভিন্ন স্তরের যে শিক্ষা পরিকাঠামো সেগুলো ভেঙে পড়ছে। সরকার চাইছে যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে তুলে দিতে, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উপর আঘাত পড়ছে। সরকারি চাকরি পেয়ে সরকারি দুর্নীতির কারণে সেই চাকরি বাতিল হচ্ছে, জীবন অনিশ্চিত হচ্ছে, নতুন পদে নিয়োগ নেই, যে পদে নিয়োগ হচ্ছে সেই পদও মানে স্থায়ী থাকছে না। এরকম বিভিন্ন বিষয়, তার সাথে ডিএ আছে, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন কাঠামো সংশোধন আছে, এরকম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজকে এই সভা। দাদা কিছুদিন আগে তো 26,000 চাকরি বাতিল হলো, কি বলবেন? हिंसा के बाद शमशेरगंज में धीरे धीरे लौटने लगी है शांति, खुलने लगी है दुकानें। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा के बाद स्थिति सामान्य हो रही है। व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोलनी शुरू की और पुलिस व केंद्रीय बलों की रूट मार्च से शांति बहाल हो रही है। 250 लोगों की गिरफ्तारी के बाद शमशेरगंज थाने के प्रभारी को हटा दिया गया। विस्थापित लोग धीरे धीरे अपने घर लौट रहे हैं और प्रशासन शांति सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। স্বাভাবিক, এখন আর কোনো সেরকম কিছু নেই। আমরা তো ভালোই আছি, দোকান খুললাম, মন্দিরে সবাই লোকজন যাচ্ছে আসছে, টোটো চলছে, বাজারহাট রাস্তা তো সব খুলে যাচ্ছে। যারা একটু ভীত হয়ে ভয় খেয়েছিল তাদেরকে আবার সাহস দিয়ে সব স্বাভাবিকভাবে সব চলছে। এখন আর কোনো মানে সব ধরনের মানুষ মানে বাইরে এসছে, সব শ্রেণীর মানুষ এসছে একসঙ্গে। আমরা যেমন আগে আমরা ছিলাম একসঙ্গে। এটা একটা কোনো পরিচালনা বা কেউ কোনো কিছু কারণে হোক উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে বলে এরকম। আমার ধুলিয়ানে কোনোদিন এসব জিনিস কোনোদিন ছিল না। ধুলিয়ানের আমরা মোটামুটি সবাই শান্তিতে ছাড়া একসঙ্গে সব মিলেমিশে থাকি, একই পরিবারের মতো। আমাদের এখানে পুজো হয়, সেরকম আমার অনুষ্ঠান যোগ দিয়ে ঈদ হয়, তারপর যে অনুষ্ঠানে আমরা ভাই ভাই মতো আছি। এখানে বাইরে থেকে মানে আমরা যে একটু ভালো আছি না, সেটা কারো গায়ে মানে সহ্য হচ্ছে না। ঠিক অন্যান্য জায়গায় সবাই জায়গায় হচ্ছে, কিন্তু আমরা ধুলিয়ানে যে একটা ভাইয়ের মতো, দাদা ভাইয়ের মতো পরিবারও আমাদের কাছে গেলেও আমরা নিমন্ত্রণ এলো যে মন্দিরে কত যারা আছে, মন্দিরে এসে দেখলো, বললো আমাদের দোকান, ওষুধের দোকান এখানে। কিছু মিডিয়া তো বাইরে মিথ্যাচার করছে যে এলাকায় থাকা যাচ্ছে না। না না না, বাজে কথা, বাজে কথা, ওগুলো গুজবে কাজ দিয়ে দাদা। এমনি ঠিকই চলছে, থাকা যাচ্ছে, এখানে গুজব ছড়িয়ে দিচ্ছে বেশি কিছু। 2 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें छिपाने में मदद करने वाले एक दलाल को पुलिस ने पकड़ा। नदिया से 2 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें छिपाने में मदद करने के आरोप में एक दलाल को गिरफ्तार किया गया है। धनतला थाना की पुलिस सूत्रों के अनुसार पिछले शनिवार रात गुप्त सूचना के आधार पर दत्तपुलिया सीमा से एक बांग्लादेशी महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया गया। इसी घटना के सिलसिले में पुलिस ने उन्हें छिपाने में मदद करने वाले किसी तलाशी व्यक्ति की जारी रखी थी और उसके बाद अब व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने में पेश किया गया। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।